Hello students, welcome to ICSE Board Class 10 Physics. We are with episode 2.2 and we are with the chapter Work, Power and Energy. So our chapter is Work, Power and Energy. In the previous episode we have seen about work. We have seen the definition of work. We have seen the derivation W is equal to F into S. We have seen the units of work as well as we have seen the different cases. In this episode, we are going to talk about power. So here, our topic is power. So, what is power? Power का मतलब क्या? Power का मतलब क्या होता है? Power का मतलब होता है ताकत, यानी कि strength, capacity, potentiality. So all these things are nothing but power. One person, he is working in a construction site and he is picking up the bricks round about 300 from point A to point B in 1 hour. That means how many seconds he is working? He is working for 3600 seconds. And how many bricks he is taking from point A to point B? 300. And the second person in the same working site, he is taking 300 bricks from point A to point B in 2 hours. 2 hours means 7200 seconds. 7200 seconds. That means in 1 hour he is conducting the work of about 150 bricks. He is working in that same site, he is working in the same construction site, but see the capacity. In 1 hour he is only taking 150 bricks, while this person, the first person, what is he doing? He is working very hard. That's what it seems, because in 1 hour he has done his work of taking 300 bricks from point A to point B. सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसने 300 ब्रिक्स ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके गया. यानी कि ये सेकंड जो पर्सन है उसका काम की जो वर्क की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, पोटेंशियलिटी है, बहुत कम है. सो वन पर्सन हैज़ मोर पावर. द फर्स्ट पर्सन वन नंबर पर्सन इज हैविंग मोर पावर. जो पहला वाला आदमी है जो काम कर रहा है वहाँ पे, उसके पास पावर ज़्यादा है. तो पावर का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी टू डू वर्क. So what is power? Capacity to do work, or you can say rate of doing work is called power. इन दोनों में, पहले पर्सन में और सेकंड पर्सन में ज़्यादा पावर किसके पास है? पहले वाले में. कैसे पता चला कि भाई वो 1 घंटे में 300 ब्रिक्स लेके जाता है, और दूसरा 1 ही घंटे में. अगर हम 2 घंटे नहीं दे सकते, यहाँ पर 1 घंटा लिया तो यहाँ पर भी हमें 1 घंटा ही लेना है. सो इफ़ वी आर टेकिंग 1 hour हियर, देन वी हैव टू टेक 1 hour हियर ऑल्सो. तो फिर सेकंड पर्सन 1 घंटे के अंदर कितना काम करता है? वो सिर्फ 150 ब्रिक्स लेके जाता है, 150 ब्रिक्स लेके जाता है. दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. दैट मीन्स इट हैज़ मोर पावर. सो पावर कैसे पता चला? बिकॉज ही इज डूइंग वर्क इन अ लेस टाइम. सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. So we can say power is equal to work done upon time taken, and this time is measured in what? This time is measured in seconds. So P is equal to W upon T. That is our formula for finding out power. Thus the power produced or used by a body or a machine depends on following factor. This is 1 mark question. This there is definition of power, 1 mark question, and these factors is about 2 marks question. So on what factors power produced or used by a body or machine depends? It depends. That means power is directly proportional to work and power is inversely proportional to time. अगर टाइम कम है
तो उसके पास पावर, वो काम करने के लिए उसने बहुत कम टाइम लिया तो पावर ज़्यादा है। जैसे कि ये पर्सन ने 1 घंटे के अंदर ही वो काम कंप्लीट कर दिया बहुत कम समय में। दोनों के बीच में कंपैरिजन है, पहला पर्सन एंड दूसरा पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, दे हैव अ कंपैरिजन बिटवीन देयर वर्क। वी आर डूइंग अ कंपैरिजन बिटवीन देयर वर्क, बिटवीन देयर पावर। तो बहुत कम समय के अंदर, बहुत कम समय में उसने 1 घंटे के अंदर, यहाँ पे उसने 2 घंटा लिया वही 300 ब्रिक्स ले जाने के लिए। So on what factors the power depends on? Power depends upon directly proportional to the work done by a body or a machine, and it is inversely proportional to the time. Lesser the time, more is the power. इतना याद रखना है. This is also 1 mark question. यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया हुआ है for a boy carrying a bag of 15 kg. Boy A 30 seconds. Boy B same 15 kg bag 60 seconds. Who has more power? Definitely A, because in less time he is carrying 15 kg of bag to the second floor. So A does the work half in time. That means the time is less doing the same work. So mathematically we can say that work is equal to what we know. Work is equal to WS. So here in place of we say power is equal to W upon T. But W means what? F into S. Therefore we can replace the value of W by F into S. So we get power is equal to F multiplied by S upon T. Now what is S upon T? Then you see here, S upon T is nothing but displacement upon time taken, and a displacement upon time taken is nothing but velocity. So displacement upon time taken is velocity. Now we are replacing the value. तो जाएगा किस तरह से? इस तरह से जाएगा. Power is equal to work done upon time taken, but work is equal to what? F into S. F into S. Replacing the value of work. Here we get P is equal to, power is equal to F multiplied by S upon time taken. So now is equal to F multiplied by V. Velocity. Why? Because displacement upon time taken is nothing but velocity. So power can also be defined as a product of force. Power can also be defined as a product of force and velocity. समझ में आया ये? तो ये दूसरा डेफिनेशन हो गया. You can write this definition also, and you can write this definition also. This definition is with the relation with work and time, while this definition is relation with the work and velocity. तो आपको पूछेंगे ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी. तो आप कौन सा डेरिवेशन करना है? ये डेरिवेशन पूरा करना है. ये डेरिवेशन, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी. एंड दिस इज अ रिलेशन बिटवीन व्हाट? वर्क एंड टाइम अलॉन्ग विथ व्हाट? विथ पावर. तो ये 1 mark का क्वेश्चन है, एंड दिस इज 2 marks क्वेश्चन. So please pay attention on all these things. These are all important. Now let us go to the units of power. This definition is also 1 mark. Power का दूसरा definition है ये. Now let us go to the next part. That is what? Units of power. यानी कि पावर के यूनिट्स के बारे में हमें देखना है. तो पावर के अगर आप यूनिट्स देखोगे तो सेम CGS और SI यूनिट्स के अंदर आपको मिलेगा. तो पहले CGS के अंदर, CGS सिस्टम के अंदर पावर का मतलब क्या? तो अर्ग अपॉन सेकेंड. वो हमें पता है, एब्सोल्यूट यूनिट है वो. दिस इज एन एब्सोल्यूट यूनिट. ये 1 mark का क्वेश्चन, ये वापस 1 mark का क्वेश्चन. स्टेट द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर. तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? अर्ग पर सेकेंड. व्हेन अ बॉडी डज अ वर्क 1 अर्ग इन 1 सेकेंड. समझ में आया? व्हेन अ बॉडी डज अ वर्क 1 अर्ग इन 1 सेकेंड, देन यू कैन से दैट द पावर बाय अ बॉडी इज 1 अर्ग पर सेकेंड. 1 अर्ग पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन S. ये 1 अपॉन S आया कहाँ से? तो अगर आप देखोगे तो दिस इज अर्ग. इट इज नथिंग बट इट इज द फॉर्मूला. सो अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. टाइम किस में आएगा? सेकेंड्स में आएगा. टाइम किस में आता है? सेकेंड्स में. और वर्क का मतलब दैट इज नथिंग बट अर्ग. और 1 अर्ग इज इक्वल टू व्हाट? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो मैं W की जगह पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर रखूँगा, और 1 अपॉन T की जगह पे 1 अपॉन S रखेंगे. तो मुझे मिलेगा कितना? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड्स क्यूब. सो दिस इज माई यूनिट फॉर व्हाट? फॉर CGS सिस्टम. पावर का CGS सिस्टम का यूनिट है ये 1 mark. दिस इज ऑल्सो 1 mark क्वेश्चन.
ये पता चला कैसे आया? दिस पार्ट इज नथिंग बट वर्क एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट टाइम। फिर से लिखूँ यहाँ पे, सो पावर इज इक्वल टू वर्क मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाइम। वर्क का मतलब अर्ग, अर्ग का जो यूनिट है वो कौन सा है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम। किस में मेजर करने वाले हैं? सेकेंड। तो पूरा मिला के कितना हुआ? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड्स क्यूब। ये किसका यूनिट हुआ? पावर का यूनिट हुआ। समझ में आया? पावर का यूनिट हुआ। और पावर का यूनिट कौन से सिस्टम में? CGS सिस्टम में। अभी ग्राम की जगह पे आप किलोग्राम लगा दो, सेंटीमीटर की जगह पे मीटर लगा दो, सेकेंड स्क्वायर, तो वो कौन सा यूनिट हो जाएगा? वो MKS यूनिट या तो फिर SI यूनिट हो जाएगा। सो 1 जूल, वर्क इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल। सो वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन T। वर्क इज नथिंग बट जूल मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेकेंड। जूल इज नथिंग बट न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट सॉरी kg मीटर स्क्वायर अपॉन S क्यूब। मैंने न्यूटन इसलिए बोला क्योंकि वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। F का मतलब आता है मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय S, इसलिए यहाँ पे एक यूनिट न्यूटन का भी आता है, जो हमने आगे वाले में एपिसोड में हमने देखा हुआ है। एनीवे ये आगे वाले चैप्टर में भी देखा हुआ है। सो लेट अस मूव ऑन टू दिस वन हियर। सो 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड्स क्यूब, that is nothing but what? SI unit, and 1 joule per second is also known as watt। ये हमने किस में देखा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था, पीछे वाले इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। पावर का यूनिट कौन सा? वॉट। बट वॉट इज इक्वल टू वॉट? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वॉट? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क किस में मेजर किया है? जूल। ओके, I hope you understood this one. This is also 1 mark question. Okay. Here, bigger units of power. Power के बड़े बड़े units कौन से हैं? तो क्या किलोवाट आवर, तो 10⁻³ मेगावाट आवर, then 10⁻⁶ गीगावाट आवर, 10⁻⁹ एंड द हॉर्स पावर जो आप गाड़ी के अंदर रेसिंग कार्स या तो फिर कार या मोटर बाइक या मोटर व्हीकल्स यू विल बी हियरिंग कितना हॉर्स पावर का है? तो बोले 746 वॉट्स का। 746 वॉट्स का मतलब क्या हुआ? 746 वॉट्स का मतलब होता है 746 जूल पर सेकेंड। उसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर इतना एनर्जी वो इस्तेमाल करता है 746 का। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितना बताया उसने? 750 वॉट्स आप लिख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? द यूनिट्स ऑफ पावर, CGS यूनिट्स एंड SI यूनिट्स एंड बिगर यूनिट्स। दिस इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। वर्क और पावर का डिफरेंस क्या है? तो वर्क इज व्हाट? वर्क डन, जिसके अंदर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आता है, डायरेक्शन भी उसके हिसाब से। वर्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क में तो आप कैसे काम करते हो, किस तरह से काम करते हो वो देखना है, कैपेसिटी देखनी है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट? पावर। सो वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता। टाइम इट इज़ इंडिपेंडेंट टू टाइम। इट इज़ इंडिपेंडेंट टू टाइम। तो डिपेंडेंट किस पे हुआ? डिपेंडेंट फोर्स पे हुआ और डिस्प्लेसमेंट पे हुआ। लेकिन पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर, लेकिन वो कैसा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना कम टाइम उतना ज़्यादा पावर, जितना कम टाइम ज़्यादा पावर, बराबर। वर्क का यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट जूल। और ऐसा यूनिट पावर कौन सा है? वॉट। ऐसा यूनिट पावर कौन सा है? वॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक पावर. आई होप यू अंडरस्टूड about this topic power. If you have any questions or any doubt, please let me know in the comment box. I hope you enjoyed it, and my humble request, जितना भी मैंने 1 मार्क का क्वेश्चंस यहाँ पे बताया हुआ है वो सब इम्पोर्टेंट है, ज़रा आप देख लेना, बराबर। If you have any questions or any something in your mind, please let me know. Hope you enjoyed this video, and thanks for your patience, and I'll see you in the next episode. उसके अंदर हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे. Thank you very much guys, and see you once again.